Transportation. Transportation in human beings. We have seen in a previous section that blood transmit food, oxygen and waste material in our body. Okay, we know it very well that blood transmit all the material or a mineral which we are need to a particular organs. Okay, all the organ need specific mineral as well as organic material through which they use it and perform a whole activity. Okay, so blood transmit all the features or a material like food, oxygen and waste material in our body. In class 9 we learned about blood being a fluid connective tissue. Okay, blood is a one type of connective tissue. Okay, fluid connective tissue which we have studied in chapter of a standard 9. Okay, blood consists of a fluid medium called plasma in which the cells are suspended. Blood is consist of a fluid medium which we say it as a plasma. Okay, in the cell are suspended in which the cell is suspended. Plasma transport food, carbon dioxide and nitrogenous waste in dissolved form. ओके, प्लाज्मा जो हो गया वो क्या करेगा, फूड है, कार्बन डाइऑक्साइड है या नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो है ओके वो किसके फॉर्म में होगा, तो क्या डिजॉल्व फॉर्म में ट्रांसमिट करेगा फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर. Oxygen is carried by the red blood corpuscle which we say it as a RBC. Okay, RBC will carry out oxygen to all the organism. Many other substances like salt are also transported by the blood. Blood also transmit what? Salts which are formed or which we are inhabiting in the form of a food or many other minerals. ओके, मिनरल के फॉर्म में या तो फूड के फॉर्म में जो भी सॉल्ट हमारे स्टमक के अंदर या बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस होगी वो किस कैसे ट्रांसमिट होगी, तो क्या विद द हेल्प ऑफ ब्लड इट ऑल्सो ट्रांसमिटेड टू ऑर्गेन्स और अ ब्लड थ्रू ब्लड. ओके, वी thus need a pumping organ to push blood around the body. Now we know it very well that blood transmit all the material or a mineral, ऑर्गेनिक मटेरियल और अ मिनरल टू ऑल द ऑर्गन्स. सभी ऑर्गन को ब्लड जो होगा वो क्या करेगा, मिनरल ऑर्गेनिक मटेरियल या तो मिनरल ट्रांसमिट करता है सभी ऑर्गन्स तक. ओके, बट वहाँ तक पहुँचने के लिए उसको प्रेशर आउट भी करना पड़ेगा. ओके, नाउ फॉर दैट पुश ब्लड अराउंड द बॉडी pumping organ. Okay, one type of pumping organ will be there which will push out a blood to all the organs up to the organs. A network of a tube to reach all the tissue and a system in place to ensure that this network can be repaired if damaged. Okay, in such a way it is prepared that if the network is डैमेज दैट कैन बी इजीली रिपेयर्ड. ओके, इस तरह से पूरी सिस्टम जो होगी वो क्रिएट होगी और ब्लड को पुश आउट करने के लिए पंपिंग ऑर्गन भी प्रेजेंट होगी जो क्या करेंगे, ब्लड को पंप आउट करके सभी ऑर्गन तक या सभी टिश्यू तक ट्रांसमिट करने में इजीली रहेगी. ओके, नाउ आवर पंप द हार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर 10th स्टैंडर्ड. ओके, द सर्कुलेशन ऑफ अ ब्लड इन अ heart or purification of a blood. Okay, deoxygenated as well as oxygenated blood are carried out in a heart and directly introduced to a or the organs. सभी ऑर्गन तक ये जो होगा ब्लड वो इंट्रोड्यूस होगा या रीच होगा. ओके, सो वी विल डिस्कस अबाउट द सर्कुलेशन ऑफ blood in a heart as well as all the organs. The heart is the muscular organ which is a big as our fist. Okay, heart जो है उसका शेप कैसा है, तो के fist जैसा है, fist. Okay, its shape is like a fist because both oxygen and carbon dioxide have to be transported by the blood. Okay, blood जो होगा वो क्या ऑक्सीजन भी ट्रांसमिट करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी ट्रांसमिट करता है. ओके, द हार्ट हैज़ अ डिफरेंट चैम्बर्स to prevent the oxygen rich blood from mixing with the blood containing carbon dioxide. Okay, there are different type of chamber. Okay, जो अलग अलग टाइप के चैम्बर होंगे
किस लिए? तो के ऑक्सीजन रिच ब्लड जो होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्सअप ना हो, इसलिए सेपरेटली चैम्बर डिस्ट्रीब्यूट किया है हार्ट के अंदर. ओके, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ चैम्बर. ओके, द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज़ टू रीच द लंग्स. Carbon dioxide rich blood has to reach the lungs for the carbon dioxide to be removed. Okay, for the removal of carbon dioxide क्या होगा, ब्लड जो होगा वो कहाँ पे लंग्स तक पहुँचेगा. लंग्स थ्रू क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो निकल जाएगा और वहाँ पे हमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन होगा. एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स हैज़ टू बी ब्रॉट बैक टू द हार्ट. ओके, वंस अगेन वी आर रिपीटिंग. क्या होगा, ब्लड को लंग्स तक लाते हैं, लंग्स में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगा और वहाँ पे ऑक्सीजन जो होगा वो मिक्सअप हो जाएगा ब्लड के साथ. नाउ दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड विच वी सेड एज अ ऑक्सीजन रिच ब्लड. ओके, ऑक्सीजन रिच ब्लड यानी क्या, तो कि जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होगा उस ब्लड को हम कहते हैं ऑक्सीजन रिच ब्लड. ओके, तो लंग्स के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन रिच ब्लड फॉर्म होगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा टू ब्रॉट बैक टू द हार्ट. ओके, दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड इज देन पम्प टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी. और बाद में जब ऑक्सीजन रिच ब्लड हो जाएगा तब क्या होगा, सभी ऑर्गन्स तक ये जो ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो क्या करेगा, ऑक्सीजन पहुंचाएगा. ओके, और दिस ब्लड विल ट्रांसफर टू द ऑल द ऑर्गन्स. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, फिर से एक बार समझते हैं. क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो कहाँ पे जाएगा, लंग्स में जाएगा. लंग्स में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगा और ऑक्सीजन, ओके, विच वी आर यूजिंग बाय रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन थ्रू क्या होता है, लंग्स के अंदर ऑक्सीजन आता है, बाहर से हम इनहेबिट करते हैं. ओके, रेस्पिरेट करते हैं. तो ये ऑक्सीजन क्या होगा, जो लंग्स के अंदर जो ब्लड था उसमें से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो था उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो था वो निकल गया और वहाँ पे ऑक्सीजन आ गया. नाउ दैट ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड. अब वो ब्लड जो था वो अब क्या बन गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया या ऑक्सीजन रिच ब्लड कह सकते हैं. ओके, वो ब्लड जो था वो ऑक्सीजन रिच ब्लड हो गया. अब लंग्स में से कहाँ पे, वो हार्ट में आया और हार्ट में से पूरे क्या सर्कुलेट होगा, तो कि पूरे बॉडी के ट्रांसमिट हो गया. ऑक्सीजन रिच ब्लड जो होगा वो पूरे बॉडी के अंदर ट्रांसमिट होके फिर से पूरी साइकिल क्रिएट होती जाएगी. ओके, सो लंग्स में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा और ऑक्सीजन जो होगा वो मिक्सअप होगा. वी कैन follow this process step by step. Okay, step by step we can follow it. Oxygen rich blood from the lungs come to the thin walled upper. Okay, ऑक्सीजन रिच ब्लड जो लंग्स में बना है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड कहाँ पे आएगा, तो के थिन वॉल अपर चैम्बर ऑफ अ हार्ट ऑन द लेफ्ट, द लेफ्ट एट्रियम. ओके, लेफ्ट एट्रियम यहाँ पे आप देख सकते हो. ओके, राइट हैंड साइड में देख सकते हो ना, लेफ्ट एट्रियम लिखा है. वहाँ पे क्या होगा, तो कि ऑक्सीजन रिच ब्लड जो था वो वहाँ पे आया. द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स व्हेन इट इज़ करेक्टेड दिस ब्लड. ओके, क्या हो जाएगा, जब ब्लड करेक्ट होगा तब वो रिलैक्स होगा. लेफ्ट एट्रियम देख सकते हो, वहाँ पे क्या होगा, इट देन कॉन्ट्रैक्ट, बाद में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा. वाइल द नेक्स्ट चैम्बर, ओके, उसके नीचे ही देख सकते हो लेफ्ट वेंट्रिकल है. ओके, वाइल द नेक्स्ट चैम्बर द लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स. ओके, तब क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल जो था वो अब रिलैक्स हो गया. ओके, वंस अगेन कहाँ पे आया, तो क्या लेफ्ट एट्रियम में से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया. ओके, उसके कारण लेफ्ट वेंट्रिकल भी क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा. सो दैट द ब्लड इज ट्रांसफर्ड टू इट. ओके, क्यों रिलैक्स हुआ, तो के लेफ्ट एट्रियम में से ब्लड जो था अब वो कहाँ पे आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में है. When the muscular left ventricle contracts in its turn, the blood is pumped out to the body. Okay, जैसे लेफ्ट
वेंट्रिकल जो होगा वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। ओके, तो उसके कारण, कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होगा, ब्लड जो होगा वो पुश आउट होगा। ओके, क्या होगा, पुश आउट हो जाएगा और पूरे बॉडी के अंदर वो ट्रांसमिट हो जाएगा डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन में। ओके, सो दिस वे द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज ट्रांसमिटेड टू द बॉडी। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, कैसा होता है, तो क्या, लेफ्ट एंट्रियम में से ब्लड जो था ऑक्सीजनेटेड वो आया लेफ्ट वेंट्रिकल में। नाउ फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल, because of the relaxation of left ventricle or relaxation contraction of a left ventricle, the blood will be pushed out to all the body organ। सभी बॉडी के ऑर्गन तक क्या हो जाएगा, ये जो ब्लड जो था वो पुश आउट हो जाएगा। Deoxygenated blood comes from the body to the upper chamber on the right side। अब deoxygenated blood की बारी। ओके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो था वो तो कहाँ पे चला गया, तो के वो बॉडी तक चला गया, सभी बॉडी ऑर्गन तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो था वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा पूरे ऑर्गन्स में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड करेक्ट होके कहाँ पे आएगा, तो के अपर चैम्बर ऑन द राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो राइट एट्रियम। ओके, कहाँ पे करेक्ट होगा, तो के राइट एट्रियम में सभी ब्लड जो होगा वो करेक्ट होगा एज इट रिलैक्स। ओके, जैसे वो रिलैक्स होगा। एज अ राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, जैसे राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा, द रिस्पॉन्डिंग लोअर चैम्बर द राइट वेंट्रिकल। ओके, राइट वेंट्रिकल में क्या हो जाएगा, अब ये ब्लड जो था वो राइट वेंट्रिकल में आ गया। कहाँ से कहाँ, तो के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में से, बॉडी ऑर्गन में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आया। राइट एट्रियम में से वो कहाँ पे आया, राइट वेंट्रिकल में आया। राइट वेंट्रिकल में देख सकते हो, विच इन टर्न पम्प इट टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेटेड। बाद में ये जो होगा वो बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ राइट वेंट्रिकल जैसे कॉन्ट्रैक्ट होगा तब वो क्या हो जाएगा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहाँ पे चला जाएगा, तो क्या लंग्स तक चला जाएगा। किसके लिए, तो क्या लंग्स में फिर से वो ऑक्सीजनेटेड होगा। कैसे ऑक्सीजनेटेड होगा, तो क्या जो ऑक्सीजन रेस्पायर कर रहे हैं, ओके, विच वी आर यूजिंग फॉर रेस्पिरेशन, दैट ऑक्सीजन विल मिक्स विथ दिस deoxygenated blood and from deoxygenated blood कार्बन डाइऑक्साइड विल बी रिमूव। कार्बन डाइऑक्साइड जो था वो निकल गया और ऑक्सीजन जो हमने रेस्पायर किया है वो जो होगा वो ब्लड को ऑक्सीजनेटेड कर देगा। तो इस तरह क्या हुआ, तो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो था वो ऑक्सीजनेटेड हो गया। ओके, ऑक्सीजन रिच भी कह सकते हैं। Since the ventricle has to pump blood into various organs, they have thicker muscular wall than the atrium। ओके, क्या होगा, उसका वॉल जो होगा वो थिकर होगा। वॉल ensure that blood does not flow backward when the atria or ventricle contract। ओके, वाल जो होगा वो क्या करेगा, वो ब्लड को क्या करेगा, फ्लो बैक करने देगा नहीं। ओके, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये जो था वो पूरा हार्ट का पूरा सर्कुलेशन ऑफ अ ब्लड था। ओके, वंस अगेन जो पूरा फिर से एक बार ओवरव्यू रिवाइज कर लेते हैं। क्या हुआ, तो के ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो था लंग्स थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एंट्रियम में, लेफ्ट एंट्रियम में से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। नाउ लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो प्रेशर के कारण वो क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो था वो पूरा बॉडी के सभी ऑर्गन तक वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच जाएगा। नाउ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो पूरे ऑर्गन्स में जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो कहाँ पे आएगा, तो के राइट एंट्रियम में आएगा। राइट एंट्रियम में से वो कहाँ जाएगा, तो क्या राइट वेंट्रिकल में जाएगा। राइट वेंट्रिकल जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तब राइट वेंट्रिकल में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो लंग्स तक चला जाएगा और
लंग्स में क्या होगा तो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो था अब वह लंग्स के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनेगा या ऑक्सीजन रिच ब्लड बनेगा। ओके, ये जो था वो पूरा ब्लड का सर्कुलेशन था हार्ट के अंदर। नाउ ऑक्सीजन एंटर द ब्लड इन द लंग्स। नाउ वी विल डिस्कस हाउ इन अ लंग्स ऑक्सीजन इज एंटरेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो था वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे बना या ऑक्सीजन रिच ब्लड कैसे बना। The separation of a right side and the left side of a heart is useful to keep oxygenated and deoxygenated blood from mixing. Okay, just now we have discussed that दो पार्ट पढ़ दिया, एक पार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक पार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, जिसके कारण क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्सअप हो सके ना। Such separation allow a high efficient supply of oxygen to the body. ओके, इसके कारण क्या होगा, प्योर फॉर्म में ऑक्सीजन जो होगा वो पूरे बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंच सकता है, सप्लाई हो सकता है। दिस इज़ यूजफुल इन एनिमल दैट हैव हाई एनर्जी नीड। ओके, जिसके कारण क्या होगा, एनिमल जैसे जो होंगे जिसको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है, ओके, उसके लिए यूज़फुल है। सच एज ब्लड एंड मैमर। ओके, सच एज बर्ड्स एंड मैमर, बर्ड्स एंड मैमर के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। विच कॉन्स्टेंटली यूज एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए एनर्जी की नीड सभी को होती है, बर्ड्स को हो, मैमर्स को या एनिमल्स को। ओके, तो इन सभी को एनर्जी की नीड सबसे ज़्यादा होती है, तो उसके लिए ये यूज़फुल है। इन एनिमल that do not use energy for this purpose, the body temperature depend on the temperature in the environment. जो इस टाइप के प्रोसेस में डिपेंड नहीं रखते हैं वो कहाँ पे है, तो क्या एनवायरमेंटल टेम्परेचर ऊपर भी डिपेंड रखते हैं। एनिमल जो है वो उसके बारे में बात कर रहे हैं। सच एनिमल लाइक एम्फीबियन और मैनी रेप्टाइल हैव अ 3 चैम्बर हार्ट। ओके, ये सब जो है कौन कौन से, तो क्या एम्फीबियन है और ज़्यादातर मोस्टली रेप्टाइल हैव अ 3 चैम्बर हार्ट एंड टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्ट्रीम। ओके, तो उसके अंदर हम देख सकते हैं क्या ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो मिक्सअप होने की टॉलरेट कर देते, क्योंकि उसके अंदर 3 चैम्बर ही है इसलिए। फिशेस ऑन द अदर हैंड, नाउ अबाउट द फिशेस। फिशेस ऑन द अदर हैंड हैव ओनली 2 चैम्बर टू देयर हार्ट। हार्ट के अंदर सिर्फ 2 ही चैम्बर होते हैं। एंड द ब्लड इज पम्प टू द गिल्स। ब्लड जो होगा वो कहाँ से, गिल्स। ओके, पम्प कैसे होता है, गिल्स तक पम्प होता है। इज ऑक्सीजनेटेड देयर, जहाँ वहाँ पे क्या होगा, तो के वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड होगा एंड पासिस डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। और गिल्स में जो ऑक्सीजनेटेड हुआ है वहाँ पे से पूरा जो होगा पूरे बॉडी के अंदर क्या होगा, ये ब्लड ट्रांसमिट होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसके बारे में बात करें। दस ब्लड गो ओनली वंस थ्रू द हार्ट इन द फिश ड्यूरिंग वन साइकिल। ओके, एक साइकिल के दौरान एक ही बार हार्ट के अंदर ट्रांसमिट होगा। सो दिस वे इन अ फिश देयर इज ओनली पासिंग ऑफ वंस, एक ही बार क्या होगा, ब्लड ट्रांसमिट होगा। ओके, इट विल पास ओनली वंस, एक ही बार वो पूरे हार्ट के अंदर ट्रांसमिट होता है एक साइकिल के दौरान। पैसेज थ्रू द बॉडी। ऑन द अदर हैंड इट गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल इन अदर वर्टिब्रेट। फिश के अलावा अदर वर्टिब्रेट में क्या होगा, तो कि 2 बार ब्लड जो होगा वो हार्ट के अंदर ट्रांसमिट होगा या सर्कुलेट होगा एक साइकिल के दौरान। दिस इज नॉन एज डबल सर्कुलेशन, इसलिए इसे हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। क्यों डबल सर्कुलेशन, क्योंकि हार्ट के अंदर 2 बार क्या हुआ, सर्कुलेट हुआ, ब्लड जो था वो 2 बार सर्कुलेट हुआ ड्यूरिंग वन साइकिल, एक साइकिल के दौरान, इसलिए हम इसे कहते हैं डबल सर्कुलेशन। नाउ द ट्यूब, ब्लड वेसल्स।
Arteries are the vessels which carry blood away from the heart to various organ of a body. Arteries जो होंगे वो क्या करेंगे तो के ब्लड को कहाँ से तो के हार्ट से लेके पूरे बॉडी के ऑर्गन तक क्या करेंगे ब्लड को पहुँचाएंगे. ओके, सो दिस इज अ वन टाइप ऑफ ट्यूब या ब्लड वेसल्स भी कह सकते हैं. Artery is the one type of vessel which transmit or which carry a blood from कहाँ से कहाँ तो के हार्ट से लेके वेरियस ऑर्गन ऑफ बॉडी, बॉडी के वेरियस ऑर्गन तक ये पहुँचाएंगे. आर्टरी जो होंगी वो. सिंस द ब्लड इमर्ज फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर. ओके, ब्लड जो होगा वो इमर्ज होगा कहाँ से तो के हार्ट से हाई प्रेशर से. द आर्टरीज हैव अ थिक इलास्टिक वॉल. तो आर्टरी जो है क्या है, वन टाइप ऑफ थिक इलास्टिक वॉल है. वेन्स करेक्ट द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट. ओके, तो आर्टरीज जो था, ओके, आर्टरीज जो है वो क्या करता है, हार्ट से लेके हार्ट में से ब्लड ब्लड लेके कहाँ तक पहुँचाएगा, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन तक. अब वेन्स जो है, ओके, जस्ट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द वेन्स. ये वेन्स जो है वो क्या करेगा, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में से ब्लड जो है वो सभी को लेके वो कहाँ पे फिर से वापस हार्ट में लेके आएगा. ओके, दैट इज द रोल ऑफ अ वेन्स. ओके, फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गन एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट. They do not need thick wall because the blood is no longer under pressure. ओके, अब इसके अंदर ज़्यादा वॉल की भी ज़रूरत, थिक वॉल की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रेशर होगा नहीं. इंस्टेड दे हैव अ वॉल दैट एंश्योर दैट द ब्लड फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन. ओके, तो एक ही डायरेक्शन में क्या होगा, ब्लड फ्लो होगा. वेन्स का काम क्या है तो के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में से ब्लड को लेके कहाँ पे लाना तो क्या हार्ट तक लाना. और आर्टरीज जो है, ओके, उसका काम है हार्ट में से ब्लड जो है वो कहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन तक पहुँचाना, ब्लड को डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन तक पहुँचाना. कहाँ से तो क्या हार्ट से लेके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन तक पहुँचाने का काम आर्टरीज का है. और वेन्स का काम डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में से ब्लड जो है उसको वापस कहाँ लाना तो क्या हार्ट में लाना. ये काम वेन्स का है. ओके, सो दिस आर द टू वेसल्स या ट्यूब्स, ओके, विच आर वेरी यूजफुल फॉर transmitting blood to different different organ and transmitting that blood from different organ to a heart. ओके, तो आर्टरीज जो होगा वो हार्ट से लेके ब्लड को कहाँ डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन तक ले जाएगा. और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन में से ये जो ब्लड है वो कहाँ वहाँ पे वापस कौन लाएगा तो क्या वेन जो होगा वो हार्ट तक वापस लेगा. ऑन रीचिंग एन organ or a tissue, the artery divides into smaller and smaller vessels to bring the blood in contact with all the individual cells. ओके, तो आर्टरी जो होगा वो क्या स्मॉलर और स्मॉलर वेसल्स में डिवाइड होते जाएंगे क्योंकि इंडिविजुअल सेल तक क्या करना पड़ेगा, ये ब्लड जो है वो इंडिविजुअल सेल तक पहुंचाना पड़ेगा. ओके, तो स्मॉलर स्मॉलर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा आर्टरी जो होगा. The smallest vessels have wall which are one cell thick and are called capillary. Okay, smallest vessel जो होगा उसके क्या होगा, वॉल होगा विच शेप तो क्या वन सेल जितना थिक होगा, उसे हम कहेंगे कैपिलरीज. एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड सराउंडिंग सेल टेक प्लेस अक्रॉस दिस थिन वॉल. एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, मटेरियल का एक्सचेंज कहाँ पे होगा तो क्या ब्लड और सराउंडिंग में. तो ये थिन वॉल के अक्रॉस यहाँ पे एक्सचेंज होगा. द कैपिलरीज देन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ वेन. ओके, कैपिलरी जो होंगे वो एक दूसरे के साथ जॉइन होके क्या बनाएंगे तो क्या वेन दैट कन्वे द ब्लड अवे फ्रॉम द ऑर्गन और टिश्यू. जो क्या करता है, ब्लड को अवे रखेगा ऑर्गन्स और टिश्यूज. Now the maintenance by platelets. What happened if this system of tube develop a leak? अगर वो लीक होने लगे then what will happen? Think about the situation when we are injured and start bleeding. Okay,
क्या हुआ अगर हम इंजर्ड हुए या ब्लड होना शुरू हुआ तब क्या होगा? नेचुरली द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द सिस्टम हैज़ टू बी मिनिमाइज। ओके, तो लॉस ऑफ ब्लड को क्या कम से कम हम मिनिमाइज करना पसंद करेंगे। इन एडिशन लीकेज विल लीड टू अ लॉस ऑफ प्रेशर विच वुड रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ पंपिंग सिस्टम। ओके, तो अगर कोई भी लीकेज हुआ, ओके, तो उसमें क्या होगा? लॉस ऑफ प्रेशर, प्रेशर भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ओके, तो इसके कारण पंपिंग सिस्टम में भी क्या डिफेक्ट दिखेगी। टू अवॉइड दिस द ब्लड हैज़ प्लेटलेट। ओके, ये इसको अवॉइड करने के लिए किसको? तो क्या पंपिंग सिस्टम को डैमेज होने से बचाने के लिए क्या होगा? ब्लड हैज़ अ प्लेटलेट सेल विच सर्कुलेट अराउंड द बॉडी and plug this leakage by helping to the clot to blood at this point of injury। ओके, क्या करेगा कि ये जो प्लेटलेट सेल जो होंगे वो क्या करेंगे? सर्कुलेट हो जाएंगे। ओके, पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट होंगे और इसमें क्या होगा? तो क्या ब्लड जो क्लॉट होगा, ओके, इंजरी के दौरान उसमें भी क्या थोड़ी एफिशिएंसी दिखेगी। और दिस वे व्हाट विल हैपन, इट गेट अवॉइडेड ऑफ ब्लड ऑफ लॉस। ओके, ब्लड लॉस होने से ये अवॉइड कर देगा और इसके थ्रू क्या हो जाएगा? प्लेटलेट जो होंगे वो आराम से पूरे बॉडी को सर्कुलेट कर देंगे और इंजरी के दौरान भी ब्लड का लॉस होगा नहीं। नाउ द नेक्स्ट इज लिम्ब। देयर इज अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड ऑल्सो इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन। ओके, अब दूसरा टाइप ऑफ फ्लूइड है जिसे हम लिम्ब कहते हैं। दिस इज कॉल्ड लिम्ब और अ टिश्यू फ्लूइड। थ्रू द pore present in the wall of a capillary, some amount of plasma, protein and blood cell escape into the intercellular space in the tissue to form the tissue fluid or a limb. It is the similar to the plasma of a blood but colorless and contain less protein। ओके, इसके अंदर क्या होगा? कलरलेस होगा और प्रोटीन भी कम होगा और इसके थ्रू क्या होगा? पोर्स जो होंगे वहाँ पे भी वॉल्स दिखेंगे। रिम्स ड्रेन इनटू lymphatic capillaries from the intercellular space which join to form a large rim vessel that finally open into large veins। कहाँ पे खुलेंगे? तो क्या लार्जर वेन्स में ये खुलते हैं। लिम्स कैरी डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्बेड फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन्स में से क्या करेगा? डाइजेस्टेड या एब्जॉर्बेड फैट जो होंगे वो रहेगा और ड्रेन एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड, ब्लड के वापस आ जाएगा। तो रिम्स का जो है वो यही हो। नाउ वी विल सी वन वीडियो। Transportation in human beings. Hello students. In our previous section we have learnt about nutrition and respiration. Now let us discuss about transport in human beings and transport in plants. As we've learnt earlier, blood transports food, oxygen and salt, takes away waste materials from our body. Blood is a fluid connective tissue. In fluid medium in blood is called as plasma, in which cells are suspended. The plasma in the blood helps in transportation of food, oxygen, carbon dioxide, and nitrogenous wastes in dissolved form. The oxygen in the blood is carried by red blood cells. To perform all the functions of circulation, a pumping organ called heart, it is present in human body, which consists of network of tubes to reach all the tissue of the system. Let us discuss about heart in detail. Heart is a muscular organ which is conical in shape, with sizes as a fist and located on the left side of the chest. Let us discuss about structure of heart in detail. Structure of heart. The heart is divided into 4 chambers. 1. Right upper chamber. 2. Right
lower chamber. 3. Left upper chamber. 4. Left lower chamber. Upper chambers of the heart are called as auricles or atrium. Lower chambers of the heart are called as ventricles. Ventricles have thicker muscles than auricles. To prevent backward flow of blood, valves are present between auricles and ventricles. The blood in the body is differentiated into two types of rich contents. Oxygen-rich content blood is called as oxygenated blood. Carbon dioxide-rich content blood is called as deoxygenated blood. To prevent both types of blood mixing in the heart is divided into chambers. Oxygenated blood, which is oxygen-rich content, reaches from lungs to heart and distributed to rest of the parts of the body. Deoxygenated blood, which is carbon-rich content, collected from all parts of the body to heart for purification.